Hello, lovelies. It's been so long, I don't even remember when I shot the last YouTube video. I had my exams. I had my exams from 28th April, no, 28th May till 13th June. And I just got done with my exams and I'm so stress free right now. So I thought I will shoot a YouTube video because I really missed YouTube. I love sitting in front of the camera and just yap basically. So I thought I'll record one video and सबसे बढ़िया topic for a YouTube video इतने break के बाद क्या हो सकता है? Obviously story time. Yeah. Y'all showered so much love on the previous story time that I thought that I'll make more story times because if you guys love it, then who am I to stop, right? So I'll be posting a lot of story times because I do have a lot of stories to tell you. So basically this video is going to be horror story time. It's literally like storming outside. I don't know, I think it's storming, and how can it get better? I don't know. Storms outside, good lighting, cozy lighting, and good horror story. I always loved it when I was a small kid. I used to listen to a lot of horror stories my mom used to tell me, and कल भी मैंने यही चीज़ करी. I just literally sat my mom down and I was like, bro, just tell me some stories because I will narrate them to my audience tomorrow in my next YouTube video. So she was like, okay, I'll tell you some. And I was like, yeah, thank you. So these stories, I'll tell you 4 stories, and all of these stories happened either to my mom or my relatives. Yeah, just them. So it's not like random people or my stories, but it's literally the people whom I know. It's scary as hell. So let's start with the first story, and the last story is going to be very traumatic because it was for me. I don't know तुम लोगों को डर लगता है या नहीं लगता, मुझे तो बहुत लगता है. Yeah, मुझे बहुत लगता है. So I'll start with the first story. Okay, so basically it's about मेरी मौसी के बारे में है. So I have 2 मौसीज. One is the oldest, then middle, and then like my mom. So like they're basically 3 sisters and my mom is the youngest. Then we have the oldest and then the middle child, right? So मेरी मतलब छोटी मौसी के बारे में. तो बेसिकली मेरी छोटी मौसी को सबसे ज़्यादा लाइक शी यूज्ड टू फील नेगेटिव एनर्जीज द मोस्ट. लाइक सबको थोड़े बहुत फील होता है, बट मेरी छोटी वाली मौसी को लाइक सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं. सो लाइक 2 ऑफ दी स्टोरीज आउट ऑफ 4 या बेसिकली मेरी छोटी मौसी के बारे में ही होंगी. सो राइट, सो बेसिकली जो इन लोगों का स्कूल था, लाइक तीनों सिस्टर्स, लाइक माई मॉम एंड माई 2 अदर मौसीज, दे ऑल डिड देयर स्कूलिंग फ्रॉम द सेम स्कूल. सो इनका जो स्कूल था ये होता था लाइक सुबह से एंड देन दोपहर तक, लाइक ऑब्वियसली द यूजुअल टाइमिंग्स, एंड देन हफ्ते में 2 बार, लाइक आई थिंक ये अभी भी किसी के स्कूल्स में होता है, मेरे भी स्कूल में होता था, तो हफ्ते में 2 बार यू हैव टू stay back for some like practices for extracurricular activities, you know, like if you're into sports or if you're into like dancing or whatever, like extracurricular activities, तुमको वहाँ स्कूल में रुकना पड़ता है for some practice and shit, right? So मेरी मम्मा के स्कूल में भी यही था. So इनका होता था हफ्ते में 2 बार. तो फिर एक दिन मेरी मौसी एंड उनकी बेस्ट फ्रेंड, तो बेसिकली मेरी मौसी जो है वो थोड़ी नॉटी टाइप की रही हैं बचपन में, लाइक शी वॉज़ वेरी नॉटी, लाइक वेरी शरारती एंड ऑल. ओके, ऑब्वियसली द मिडिल चाइल्ड इज़ ऑलवेज द नॉटीएस्ट. सो तो इन लोगों का जैसे स्टे बैक रहता था, तो ये लोग प्रैक्टिस वगैरह करते थे एंड बीच में जब इन्हें टाइम मिलता था ना, तो ये लोग ऐसे ही लाइक स्कूल हांडने निकल जाते थे. हम लोग भी चले ही जाते थे ऑब्वियसली. हेल ना, समवन्स एट द डोर. I don't know if you could hear the doorbell, but कोई आया है and I'm gonna get up now. No, I'm shooting. Yeah. तो ये लोग हांडने निकल जाते थे ऐसे ही, लाइक पूरा स्कूल. तो बेसिकली इनका क्या होता था, एक ओल्ड बिल्डिंग थी एंड देन देयर वाज अ न्यू बिल्डिंग, राइट? तो इनका स्कूल ऐसे बहुत बड़ा सा था, लाइक एरिया वाज वेरी बिग, एंड उसमें दे हैड वन ओल्ड बिल्डिंग एंड दे हैड वन न्यू बिल्डिंग. एंड देन सामने लाइक पीछे की साइड एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था और सामने की साइड एक बहुत बड़ा गार्डन टाइप का था जिसमें बीच में से एंट्रेंस था. दिस बेसिकली रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल. मेरा स्कूल भी काइंडा ऐसा ही था, तो उनका भी ऐसे था. ओके, हमारे स्कूल में बस ओल्ड बिल्डिंग नहीं थी, हमारा स्कूल एक ही बिल्डिंग थी पूरी, तो इनके 2 बिल्डिंग्स थे. तो बेसिकली बहुत बड़ा स्कूल था, तो ये लोग घूमते रहते थे, राइट? तो क्या हुआ, जो पियॉन्स होते हैं ना, लाइक आई वुड नॉट कॉल देम पियॉन्स, बट लाइक जो हेल्पिंग स्टाफ जो होते हैं, राइट, स्कूल के, तो बेसिकली इनके भी एक हेल्पिंग स्टाफ थे जो लाइक बहुत पुराने थे. ही वॉज़ वेरी ओल्ड
ठीक है, वो बहुत बड़े थे एंड जो रजिस्टर लेके आते हैं ना अटेंडेंस वाली, हमारे सबके स्कूल में होता होगा, एक आते हैं दीदी या भैया, वो रजिस्टर लेके आते हैं अटेंडेंस वाली। तो कुछ दिन पहले लाइक उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। तो अब स्कूल में कोई नए रख लिए होंगे रजिस्टर देने वाले पियोन, या जो आई वोंट कॉल देम पियोन्स बट आई वुड कॉल देम हेल्पिंग स्टाफ। तो उनके स्कूल ने कोई नया स्टाफ रख लिया ऑब्वियसली, एंड कमिंग बैक टू द प्रेजेंट डे, राइट। तो इनका चल रहा था ऐसे ही स्टे वगैरह, एंड मेरी मौसी और उनके बेस्ट फ्रेंड, दे वर लाइक वेरी क्लोज एंड लाइक वेरी जैसे गर्ल फ्रेंडशिप्स होती हैं एंड ऑल दैट, तो उन लोग के वैसा था। तो वो लोग हमेशा साथ रहते थे एंड ऑल दैट। तो उन्होंने क्या किया, दे प्लान दैट दे लाइक गो एंड रोम अराउंड थोड़ा सा। तो वो लोग ना ऐसे अब क्या हो गया था ना, थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, राइट। तो शाम के टाइम में ऑलमोस्ट लाइक सब लोग थोड़ा घर वर जा चुके थे। तो इनका स्कूल से थोड़ा पास ही था घर, तो ये लोग थोड़ा लेट ही जाते थे क्योंकि घर जाके क्या ही करें ऑब्वियसली, राइट। तो दे यूज्ड टू गो होम थोड़ा ऐसे लेट। तो दे वर लाइक स्टेइंग बैक एंड थोड़ा ऐसे खाली हो गया था एंड थोड़ा शाम का टाइम हो गया था बिकॉज इनकी आई थिंक 3 बजे ही छुट्टी होती थी एंड थोड़ी जल्दी ऐसे 5 साढ़े 5 तक ऐसे रात हो जाती थी। आई डोंट नो, हो सकता है विंटर्स का टाइम हो, बट मेरी मम्मा ने जैसे बोला थोड़ी रात हो गई थी। तो ऐसे लाइक वो नहीं होता जब थोड़ी शाम ढल रही होती है एंड लाइक रात आ रही होती है, आई डोंट नो व्हाट्स दैट कॉल्ड बट ट्वाइलाइट यस। तो ऐसे ही था, ऐसा टाइम था, ठीक है। तो वो लोग ऐसे घूम रहे थे। तो वो ओल्ड बिल्डिंग में चले गए जहाँ पे लाइक मोस्टली क्लासेस की छुट्टी हो गई थी, छोटी क्लास थी आई थिंक वहाँ पे, वो सबकी छुट्टी हो गई थी। एंड वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो भी है। एंड देन एकदम से मेरी मौसी को सामने पे चल के आता हुआ दिखा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड की तरफ ऐसे करके देखा कि अभी तो पूरा स्कूल लाइक ये पूरी बिल्डिंग तो खाली है, वाई समवन लाइक कमिंग टुवर्ड्स अस। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट हियर इज़ जब उन्होंने ध्यान से देखा कौन आ रहा है चल के, इट वॉज दैट अंकल जो रजिस्टर लेके आते थे इनके यहाँ क्लासेस में। एंड दे वर शेक शैक शॉक्ड, ओ माई गॉड। मैं भी शॉक हो गई सुन के। मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा आप सच बोल रही हो? तो एंड शी वाज लाइक मुझे तो झूठ बोल के ऑस्कर मिल जाएगा बेबी आपसे। तो फिर मैंने कहा ओके, तो सच ही बोल रही होंगी फिर। तो भाई दे लिटरली सॉ दैट मैन हु डाइड लाइक अ फ्यू डेज बैक एंड ही वॉज लिटरली कैरिंग द रजिस्टर लाइक दिस। जैसे वो रजिस्टर लेके आते थे क्लासेस में, वो वैसे ही लेके घूम रहे थे वहाँ पे। एंड ही वॉज़ लाइक थोड़ा ब्लरी टाइप का, इसलिए वो पहले पहचान नहीं पाए कौन है। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा, क्योंकि लाइट्स भी बंद ही हो गई होंगी यार स्कूल की, तो शाम के टाइम क्या ही लाइट्स खुली रहेंगी। एंड दे रैन, एंड व्हेन आई टेल यू दे रैन, दे लिटरली रैन फॉर देयर लाइव्स। ओ माई गॉड, उन्होंने आगे ना पीछे कहीं कुछ नहीं देखा एंड वो भागे, बहुत तेज़ भागे। एंड ब्रो दे रीच्ड जहाँ पे उन्हें पहुँचना था। फिर लाइक वो वहाँ पहुँच गए होंगे जहाँ पे दूसरी टीचर्स वगैरह थी, बच्चे वगैरह थे। एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आई वाज लाइक व्हाट। तो बेसिकली I think his spirit got stuck in this world and like maybe he was very attached to the school and the students and the teachers and everything because as I told you he was very very old, right? तो उन्होंने like हो सकता अपनी आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने इसी स्कूल में निकाली है। तो ऑब्वियसली उनकी अटैचमेंट होगी स्कूल से एंड ऑल दैट एंड हिज स्पिरिट गॉट स्टक इन द स्कूल। एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आई वाज लाइक सो क्रीप्ड आउट एंड आई वाज लाइक मॉम मुझे और मत ही सुनाओ, फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी। एंड शी वाज लाइक इफ़ यू वांट टू मेक द वीडियो जस्ट हियर मी आउट एंड शी वाज राइट। तो मैंने बाकी की भी सुनी। सो दिस वाज जस्ट द फर्स्ट स्टोरी एंड लिटरली दिस इज़ नथिंग। अभी जो बाकी की स्टोरीज़ हैं दे विल लाइक फ्रीक यू आउट even more. So let's move on to the next story. This story is about my grandmother, मेरी नानी, right? तो वो बहुत छोटी थी जब ये इंसिडेंट हुआ। So basically उस टाइम तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग नहीं था when she was like a kid. She was literally I think फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी, आई डोंट नो। मेरी मम्मा ने आई थिंक इतना ही बताया, मेरे को ये भी नहीं याद कि क्या बताया था उन्होंने। मेमोरी सो गुड, शेफ्स किस। ओके, तो उन्होंने आई थिंक मुझे फर्स्ट या सेकंड ही बोला था। तो मेरी नानी बहुत ही छोटी थी, ठीक है। तो बेसिकली हर हाउस जो मतलब मेरी नानी के पापा का मतलब मेरे पर नाना जी का जो घर, पर नाना ही होंगे ना वो मेरे, हाँ, तो जो मेरे पर नाना जी का घर था इट वाज लाइक अ बिग हाउस, या बिग हाउस, ओके। तो वेरी बिग, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था और गार्डन के भी बाहर एक लाइक इट वाज लाइक अ ग्राउंड, आई डोंट नो, मतलब बंगाली में खाली बाड़ी बोलते थे। मतलब मेरे मम्मी पापा लाइक मम्मी पापा नहीं, मतलब मेरे जो घर वाले हैं वो उस जगह को खाली बाड़ी बोलते थे, ठीक है। तो बोलते हैं, मतलब अभी भी बोलते हैं। एंड मेरी नानी तो इस बारे में बात करती रहती हैं टू लाइक फ्रीक मी आउट, आई डोंट नो। तो
इस जगह पे मोस्टली इट वाज लाइक ऐसे बड़ा सा प्लेग्राउंड टाइप का, एंड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह थी, यू नो, कि इट वाज नॉट लाइक पक्का ऐसे जैसे अभी की जो रोड्स हैं, इट वाज नॉट लाइक दैट, ओके, इट वाज जस्ट लाइक अ ग्राउंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वहाँ ना ऐसे थोड़ा आई थिंक पानी वानी भी जमा हुआ था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर इतना। तो वहाँ पे मेरी नानी जिस विलेज में, आई वुड कॉल इट विलेज, क्योंकि विलेज में ही रहते थे वो लोग पहले, तो जो वो विलेज में रहते थे वहाँ पे एक बहुत लाइक देयर वाज अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, एंड बेसिकली उनकी बेटी की शादी थी, ठीक है, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, एंड ऑब्वियसली अब विलेज में तो इतना अच्छा सामान वगैरह, खाना वगैरह एंड एवरीथिंग, डेकोरेशन आइटम्स ये सब नहीं मिलते। तो ही वेंट टू द शहर टू गेट सम स्टफ फ्रॉम देयर, ओके, खाने वाने का भी एंड लाइक फॉर डेकोरेशन एंड एवरीथिंग ऑल्सो। तो वो शहर गए, ठीक है। तो अब शहर से आने का जब टाइम हुआ, द ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट रियली दैट वेल उस टाइम पे। तो जब उनके आने का टाइम हुआ तब तक लाइक काफ़ी रात हो गई, ठीक है, काफ़ी रात हो गई। एंड ऑब्वियसली यार, अब मैं जब जिस टाइम की बात बता रही हूँ बहुत सालों पहले की बात है, तो लाइक स्ट्रीट लाइट्स एंड एवरीथिंग वाज जस्ट डिस्कवरिंग उस टाइम पे। आई डोंट इवन नो भाई थे भी या नहीं थे, इतना मेरी मम्मी ने डिटेल में तो नहीं बताया। तो शी वाज लाइक, शी टोल्ड मी दैट ऐसे ऐसे इतना कुछ था नहीं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड लाइक एवरीथिंग वाज नॉट सो वेल ऑफ उस टाइम पे। तो वो आते आते उनको काफ़ी रात हो गई, आई थिंक 10-11 बज गए, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू नानी का घर। वाई नानी का घर इज़ रिलेटेड टू हिम, आई विल टेल यू। तो नानी अपनी मम्मा के साथ सोती थी, एंड मतलब मेरे पर नाना जो थे आई थिंक वो दूसरे रूम में या कहीं तो कुछ सोते थे, ठीक है। तो मेरी नानी और मेरी मतलब नानी की मम्मा वो लोग सो रहे थे ऐसे, एंड एकदम से दे हेयर समथिंग फ्रॉम देयर गार्डन के पीछे वाला खाली बाड़ी, ठीक है। तो दे हेयर समथिंग फ्रॉम देयर एंड दे वर लाइक दे न्यू समथिंग वाज फिशी अबाउट दैट प्लेस, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी कुछ इंसिडेंट्स सुन रखे हैं, मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं करे थे, मेरी नानी ने तो स्पेशली, बट उनकी मम्मा या जो भी है उन लोगों ने बता रखा होगा कि ऐसे रात को नहीं जाते उधर, बिकॉज समटाइम्स देयर आर सम नेगेटिव ऑरा इन सर्टन प्लेसेस, सो यू शुड नॉट जस्ट रोम अराउंड देयर, राइट। सो मेरी नानी और मेरी पर नानी को ऐसे आवाज़ें आने लग गई, ऐसे करके कुछ ऐसे, दिस वुड लुक सो गुफी बट लाइक ऐसी थोड़ी कुछ आवाज़ें आने लग गई, ठीक है। तो मेरी नानी तो मेरी जैसी ही है, ठीक है, उनकी भी बहुत फटती है, तो उनको डर गई एकदम से, और मेरी परनानी जो मतलब नानी की मम्मा है वो भी डर गई, एंड दे कॉल्ड आउट टू माई परनाना जी, एंड ही वाज लाइक इट्स नथिंग जस्ट स्लीप। तो उन्होंने ऐसे डांट दिया उन लोगों को कि सो जाओ, तुम लोग ज़्यादा ही सोचते हो ऐसे ऐसे करके। तो मेरी ना नानी कंटिन्यूसली सुनती रही वो आवाज़, एंड देन हर मॉम सेड दैट जस्ट गो टू स्लीप, इट्स फाइन, ओके, नथिंग इज़ गोना हैपन, जस्ट भगवान का नाम लो एंड सो जाओ, बिकॉज दे न्यू समथिंग इज़ देयर, लाइक कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्वियसली हमको इतना पागल, हम मूवीज़ में नहीं रहते भाई कि हम बाहर जाके देख लग जाके कौन है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता, इन रियल लाइफ तो कोई नहीं करता, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मूवीज़ दो, बट इन रियल लाइफ नो वन डज दैट। तो ये लोग ऐसे भगवान का नाम लेते लेते सो गए। और सुबह सुबह लाइक डॉन के टाइम लाइक जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स जा रहे होते थे अपने खेत वेत में या जो भी है, तो वो लोग ऐसे क्रॉस करते थे उस जगह को। सो दे सॉ दिस डॉक्टर, ही वॉज लिटरली लाइंग देयर, this doctor who went to the शहर to get some stuff for his daughter's wedding, right? So he was just lying there, and then they went to check on him, and then they saw that वो थोड़े unconscious होके पड़े हुए हैं, ठीक है, and they were like, oh, what happened? So they took him home, and फिर वो like 3 दिन तक unconscious रहे, and when I tell you unconscious, he didn't even move. He was like breathing and everything, but like he didn't even move. So बहुत सारे डॉक्टर्स आए उन्हें चेक करने and everything, but no one could figure out कि क्या हुआ है उन्हें, ठीक है। he was not even eating, drinking, nothing. वो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, and he was just like lying on his bed, right? So समझ ही नहीं आया किसी को क्या हुआ, and then unfortunately, oh my god, I don't like to speak about deaths, but unfortunately उनकी डेथ हो गई on 4th day, ठीक है। ओह दिस इज़ सो हैवी, आई डोंट नो यार, मुझे डेथ्स की बात करने में बिल्कुल अच्छा, आई जस्ट हेट इट विद ऑल माई हार्ट, ओके। सो ही डाइड, ऑलराइट। तो अब ऑब्वियसली किसी ने उन्हें चेक नहीं किया था पहले कि लाइक उनकी मतलब बॉडी कौन ही चेक करेगा ऑब्वियसली। तो जब लाइक डेड बॉडी को ले जाके नहलाते हैं ना, बिफोर द एवरीथिंग, द जो भी होता है उसका, तो जब उसके पहले नहलाते हैं, तो जो उन्हें नहला रहे थे, दे सॉ उनकी बैक पे पीछे, जब उन्होंने कपड़े वपड़े उतारे कि उनकी बैक पे ऐसे 5 फिंगर्स का निशान, पूरा ब्लू कलर का, बिल्कुल ब्लू ब्लैकिश सा ऐसा पूरा निशान ऐसे पूरा बना हुआ था बिल्कुल उनके बैक पे छपा, इट वाज इम्प्रिंटेड ऑन हिज बैक लिटरली,
एंड एवरीवन गॉट शॉक्ड कि व्हाट द हेल. ठीक है, तो सबको लाइक काफ़ी शॉक लगा एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड ही शुडंट हैव गॉन देयर इतनी रात को. ऑब्वियसली यू ऑल नो कि क्या क्या चलता है वहाँ पे. एंड सब ने बहुत लाइक एवरीवन ग्रीव्ड ऑब्वियसली. एंड वो पूरा हाथ का निशान उनकी बैक पे था. एंड व्हेन आई इमेजिन दिस आई लिटरली आई गेट स्पीचलेस ये सब सुन के लिटरली. क्योंकि आजकल के टाइम पे ऑब्वियसली इट्स लाइक थोड़ा लाइक अनबिलीवेबल लगता है सुनने में. बट यू नो पहले के टाइम पे बहुत चीज़ें होती थी लोगों के साथ. एंड इट लिटरली शॉक्स मी व्हेन आई हियर सच स्टफ. ओके, सो दिस वाज द सेकंड स्टोरी. नाउ माय थर्ड स्टोरी इज़ अगेन मेरी मौसी. एंड इन दिस स्टोरी माय मॉम इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, सो आई कैन लाइक वाउच के भाई कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था उनके वहाँ पे. आई डोंट नो. तो बेसिकली थर्ड स्टोरी में ये होता है कि हमारी सरस्वती पूजा होती है. ठीक है, तो मेरी मम्मा ने कुछ बहुत अच्छा सा नाम बताया था इस पूजा का, बट आई फॉरगॉट ऑब्वियसली नथिंग न्यू. तो मैं भूल गई. ठीक है, तो हमारी सरस्वती पूजा होती है ऐसे. एंड वो रात को होती है. अब आई डोंट रिमेंबर कि उस पूजा स्पेसिफिकली उस पूजा को क्या बोलते हैं. तो वो बेसिकली वो रात को होती है पूजा. ठीक है, तो रात को होती है ना, तो सबके घर से बहुत सारे प्रसाद मिलते हैं. अब प्रसाद ऐसे नॉर्मल वाले नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेस्टी ऑब्वियसली यू नो बेंगोली स्वीट्स राइट. स्वीट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद घर पे बहुत सारी चीज़ें बनती है, वो सब मिलता है स्पेशली बच्चों को एंड एवरीथिंग. तो मेरे मम्मा वगैरह ये लोग सब कज़न्स वगैरह सब लोग मिलके ना नानी मेरी जो परनानी का घर था वहीं गए थे ये लोग. ठीक है, विज़िट करने. तो अब क्या होता है कि ऑब्वियसली वो नेबरहुड भी उन लोगों का जान पहचान का ही था, बिकॉज सब लोग लाइक आसपास के ही थे, तो वो लोग जानते थे ऐसे. ठीक है, तो ना ऐसे वो लोग उनके घर पे पूजा हुई पहले मेरी परनानी के घर पे. एंड देन वहाँ पे उनको जो भी मिलना था खाने वाने का वो सब मिल गया. ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग दूसरों के घर जाके भी ऐसे लाइक पूजा की वो सब करके फिर उसके बाद ये लोग स्वीट्स वगैरह लेके खा के आराम से अपना बढ़िया आते थे फिर घर वापस. ठीक है, तो ये लोग हमेशा हर साल ही जाते थे ये लोग ये सब करने. सो देयर वाज लाइक नथिंग न्यू अबाउट इट. ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही जा रहे थे. सो एक घर था, इनको इनकी चाची के घर पे जाना था. ठीक है, मतलब मेरी परनानी के घर से मेरी मम्मी की जो चाची हैं उनके घर पे दे वर लाइक गोइंग, या आई थिंक या दैट. ठीक है, तो उनका घर थोड़ा सा लाइक इट वाज अक्रॉस वन लेक. ओके, इट वाज अक्रॉस वन लेक और पॉन्ड. आई थिंक पॉन्ड बोला था मम्मी ने, जो भी है. तो वो क्रॉस करके जाना होता है. तो ये लोग साइड से क्रॉस करके जा रहे थे आराम से. एंड मेरी दोनों मौसियाँ मेरी मम्मी से बड़ी हैं. ठीक है, तो जैसे मेरी मम्मा अगर लाइक उस टाइम 4th 5th में थी, तो मेरी मौसी आई थिंक 9th 10th ऐसे समथिंग में होंगी. ठीक है, तो मेरी मौसियों के फ्रेंड्स भी बड़े थे ऑब्वियसली, और मेरी मम्मी के भी एक दो फ्रेंड्स थे छोटे छोटे. तो ये लोग आगे पीछे चल रहे थे. और जो मेरी छोटी वाली मौसी है, मिडिल वाली मौसी, एंड हर बेस्ट फ्रेंड जिनके बारे में मैंने फर्स्ट स्टोरी में बताया था, सो दे बोथ व सबसे लास्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी अलग बातें चल रही होंगी या व्हाटएवर. तो वो लोग सबसे लास्ट में आ रहे थे एंड मेरी मम्मा वगैरह बीच में थे छोटे वाले, एंड सबसे बड़े वाले आगे चल रहे थे. ठीक है, तो एकदम से मेरी मौसी के चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज़. ठीक है, फिर उनकी फ्रेंड ने उनको देखा ऐसे व्हाट द हेल, और वो भी चिल्ला दी बहुत तेज़. ठीक है, और मेरी मम्मी वगैरह आ गई थे, वो लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं व्हाट द हेल. एंड वो लोग उनकी शक्ल देख के चिल्ला दिए. ठीक है, और किसी ने कुछ किसी को पूछा नहीं. दे जस्ट रैन बैक टू देयर हाउसेज. किसी ने कुछ किसी से नहीं पूछा. ठीक है, एंड दे जस्ट रैन. दे वर किड्स लाइक डेफिनेटली दे गॉट स्कैर्ड, दे रैन राइट. तो फिर घर जाके इन लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि व्हाट द हेल हैपेंड देयर, लाइक व्हाट. फिर उसके बाद कुछ बड़े लोग भी आए, लाइक ऑब्वियसली मम्मी के पापा वगैरह एंड ऑल दैट जो भी है, लाइक सारे रिलेटिव्स ऑलमोस्ट आ गए. ठीक है, फिर मेरी मौसी ने शी स्टार्टेड लाइक टेलिंग व्हाट हैपेंड. एंड व्हेन शी स्टार्टेड टेलिंग व्हाट हैपेंड, आई विल जस्ट होल्ड योर हैंड व्हेन आई से दिस. शी literally saw a man crossing the river or the pond like whatever, उसके ऊपर से like ऐसे ऐसे. And he was, mind you, at least he was 10 feet tall. Like he had really long legs and weirdly long arms, and his body, he was very very thin, and he was crossing the pond. उसके पानी के अंदर नहीं जा रहा था उसका पैर. लाइक ही वॉज फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर. लाइक ऐसे हमने डोरेमोन वगैरह में देखा ना, दे जस्ट वॉक ऐसे वाटर के ऊपर. ही जस्ट क्रॉस द पॉन्ड 4 स्टेप्स में. एंड दिस माई मौसी लिटरली विटनेस्ड with her own eyes. And
आई टोल्ड यू राइट दैट उनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हो जाती थी, तो उनको काफ़ी चीज़ें दिख भी जाती थी, उनको वैसे नॉर्मल मतलब वैसे भी काफ़ी चीज़ें दिखी हैं, तो दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। तो उनको ऐसे दिख जाती थी चीज़ें एंड शी सॉ इट एंड ओ माई गॉड एंड हर फ्रेंड ऑल्सो, लाइक जब वो चिल्लाई ना तो वो आदमी ऐसा पार ही कर रहा था उस पॉन्ड के ऊपर से चल चल के। इट वॉज नॉट एन आईसी वाटर वाला पॉन्ड जो भी है, ठीक है, तो बस चल चल के पार कर रहा था। और जब मेरी मौसी की फ्रेंड ने ऐसे करके देखा ना, शी जस्ट सॉ द ग्लिम्स ऑफ दैट मैन, शी ऑल्सो सॉ इट, शी लिटरली ऑल्सो सॉ इट। क्योंकि पहले अगर से मेरी मौसी देखती तो शायद कोई इन पर बिलीव नहीं करता, बट उनकी फ्रेंड ने भी देखा एंड वो लोग प्रैंक नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली दे वर लाइक नॉटी एंड एवरीथिंग, तो सबने पहले ये सोचा कि प्रैंक कर होंगे, बट द फियर ऑन देयर फेसेस, लाइक तुम जब किसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई देखते हो ना, तो यू अंडरस्टैंड, यू फिगर इट आउट, राइट। तो फिर सब लोगों ने बहुत डांटा भी उन्हें कि तुम लोगों को कोई अकल नहीं है, रात को ऐसे घूमते रहते हो, ये वो, तुम लोग को मना किया है कितनी बार, सुबह चले जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह एवरीथिंग। एंड दे लिटरली सॉ दिस एंड ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाट द हेल वाज इट, आई डोंट इवन नो, क्योंकि मुझे जिन आई डोंट भाई, मुझे लिटरली भूतों के बारे में कोई आइडिया नहीं है सीरियसली, एंड आई डोंट इवन वांट टू हैव एनी आइडिया, ठीक है, तो मेरे को कोई आइडिया लगाना भी नहीं है, थैंक यू। तो उन्होंने ये सब देखा एंड आई वाज लाइक no way, this can't be real. But my mom was like, yeah, she saw it and I was also there, like she was also there, my mom was also there, right? तो उन्होंने भी like उनकी शक्ल देखी ना and she also got very scared। वो तो बहुत ही छोटी थी, like 4th 5th भाई, 4th 5th में तो तुमको इतनी सी आवाज़ में भी डर लग जाएगा obviously। तो she also saw her like she also saw the fear on her face and she was like very scared। Oh my god, this was the third story and now I'll move on to the last story। मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो रहा है, I don't know भाई, I need to get a new phone with 1 TB of storage, right? तो okay, moving on to the 4th story। This story literally moved me, not in a good way, not in a good way। तो the story is also about मेरी नानी का मायका, मतलब I don't know भाई, I don't know what was wrong with that house or like that एरिया और whatever। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक ऐसी होती रहती थी। तो मेरी नानी की एक बड़ी बहन है, ठीक है, तो उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो नई शादी हुई थी ऑब्वियसली। तो मेरी नानी आई थिंक तब 8th 9th में ही होंगी वो। तो उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी एंड उनकी बड़ी बहन शहर में रहती थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली विजिटेड नानी का घर, ठीक है। तो वो एक और बार आए थे, तो वो अपने हस्बैंड को लेके आई थी उस टाइम, ठीक है। तो मेरी जो नानी का लाइक वो मैंने बताया नहीं था, उनके घर के बड़ा घर था, तो उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा गार्डन है, जिसमें लाइक देवर वेराइटी ऑफ ट्रीज़, आई डोंट नो, वेराइटी ऑफ ट्रीज़, उसमें बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से लाइक शहर में भी काफ़ी लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जाते वाते थे। आई थिंक उनका कुछ था, मतलब उनका वो पीछे का गार्डन नहीं बोलूँगी यार, मुझसे वो काफ़ी बड़ा सा कुछ ही था, आई डोंट नो, ठीक। तो जिस दिन मेरी नानी की सिस्टर एंड हर हस्बैंड दे विजिटेड ना, उस दिन बहुत तूफ़ान हुआ था रात को, लाइक बहुत ही तगड़ा वाला तूफ़ान, ठीक है, ऐसा तूफ़ान जिसमें से लाइक पेड़ वेड़ भी गिर जाएँ, ठीक है, ऐसा तूफ़ान हुआ था कुछ। तो उनका जो पीछे वाला गार्डन था, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे मैंगोज़, लाइक लाइट चली गई, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मैंगोज़ एंड एवरीथिंग बहुत सारे उगे थे, ठीक है। तो अब जो मेरी नानी की सिस्टर के जो हस्बैंड थे, उन्होंने सोचा कि भाई अगर इतना अच्छा मौका है तो आई ऑल्सो टेक सम मैंगोज़ फ्रॉम दैट गार्डन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको लाइक बहुत सबने ऑलमोस्ट मना ही किया था। ओह माय गॉड, आई स्टार्ट स्वेटिंग जैसे ही लाइट गई। हाँ ओके, तो उनको मना किया था बहुत लोगों ने कि जस्ट डोंट गो देयर, क्योंकि मतलब उनका ये प्लान था कि वो सुबह सुबह चले जाएंगे, क्योंकि अगर लाइक सुबह इन द सेंस कि 3 4 5 बजे के बीच, क्योंकि उसके बाद अगर जाएंगे तो लाइक ऑलमोस्ट सब लोग आ जाएंगे लेने, क्योंकि वहाँ से सब लोग चुराते भी थे एंड इवन फिर ख़रीद के भी लेके जाते थे, तो जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा था मैं उस टाइम पे चला जाऊँगा ताकि मुझे मिल जाए सारा अच्छा लाइक मैंगोज़ वगैरह, आई कैन लाइक टेक बैक होम, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ही डिड। उन्होंने किसी की नहीं सुनी एंड ही वाज लाइक अरे कुछ नहीं होता, बिकॉज एवरीवन टोल्ड हिम कि अगर तुम उस साइड जा रहे हो तो उसके पीछे ही जो है वो खाली बाड़ी यू नो वो है, तो उस टाइम पे जाना इज़ नॉट रियली गुड। एंड ही वाज लाइक ना आई डोंट रियली केयर, ठीक है। ऑब्वियसली वो शहर के थे तो क्या ही अब वो केयर करेंगे इस बारे में। तो ही जस्ट वेंट, ठीक है। आई थिंक वो रात के 3:30 या 3:45 बजे गए, ठीक है। एंड ही सॉ सो मैनी मैंगोज़, लाइक सो मैनी मैंगोज़, है ना, ऐसे ये पूरा रूम भरा होगा उसमें, मतलब इतने सारे मैंगोज़ थे, ठीक है। एंड व्हेन ही सॉ देम ही वाज लाइक
oh my god, so he saw all those mangoes and he really wanted those. तो उन्होंने जल्दी से वो अपना बास्केट उठाया and he went and he started collecting mangoes. ठीक है, तो वो ना ऐसे झुक के कलेक्ट अपने बास्केट में रख रहे थे, ऐसे ऐसे उठा के, बास्केट उनके इस साइड में थी तो ऐसे मैंगोज उठा के ऐसे ऐसे रख रहे थे, ठीक है, नीचे से. तो उन्होंने ना एकदम से ऐसे हाथ के नीचे से अपनी बास्केट देखी एंड इट वॉज एम्प्टी. इट वॉज लिटरली एम्प्टी. ठीक है, तो उनको समझ नहीं आया. ठीक है, फिर उन्होंने ना ऐसे देखा अपने बास्केट में, तो देखा, फिर उन्होंने थोड़ा ऐसे करके और पीछे को देखा ना अपना हाथ उठा के. ही सॉ सो मैनी नेकेड, व्हेन आई टेल यू नेकेड, लाइक ऊपर से नीचे तक नेकेड, वेरी स्लिम, लाइक हड्डी जैसे लोग भी नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे वर, लाइक मेरी मम्मी भी नहीं डिस्क्राइब कर पा रही थी वो चीज़ कि वो क्या थी. बट ही लिटरली सॉ सो मैनी लिटिल हैंड्स एंड लेग्स, ब्लैक, इस दरवाजे के जैसे ब्लैक. व्हेन आई टेल यू ब्लैक, आई मीन ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक. इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि वो जले हुए ही थे, स्किन उनकी जो भी थी. एंड ही सॉ दोज लिटिल हैंड्स एंड लेग्स, नॉट इवन लिटिल, ठीक है, लिटिल नहीं था, लिटिल मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बहुत लॉन्ग थे, स्लिम थे, दे वर लाइक ट्री की ब्रांचेस, बिल्कुल इतने स्लिम. एंड जैसे ही वो मैंगोज अपनी बास्केट में रख रहे थे ना, दोज स्टफ वर टेकिंग दोज मैंगोज आउट फ्रॉम हिज बास्केट. वो मैंगोज डाल रहे थे और वो पीछे से मैंगोज निकाल रहे थे. अब ही गॉट स्टक इन द सिचुएशन. तो अब वो क्या करे? ही गॉट रियली स्कैर्ड ऑब्वियसली. उनके हैंड्स एंड लेग्स शेक करने लग गए वहीं खड़े खड़े. एंड नाउ वन गुड थिंग दैट ही डिड, बहुत ही दिमाग से उन्होंने काम किया. उन्होंने क्या किया? ही डिड नॉट लुक बैक ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ, ओह हेल ना ब्रो, नो वे, माई लाइट फेल डाउन. ओ माई गॉड, लाइक इतना स्टिफली मैंने इसको लगा रखा है, आई डोंट नो कैसे गिर गया. नेवर माइंड, ओके, नथिंग कैन स्टॉप मी. मुझे बहुत गर्मी लग रही है बट इट्स ओके. तो उन्होंने एक काम किया, वो उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा ऑब्वियसली. एंड ही जस्ट केप्ट कलेक्टिंग दोज मैंगोज इन हिज बास्केट. ठीक है, वो बस मैंगोज उठाते रहे और डालते रहे अपनी बास्केट में, धीरे धीरे. ही थॉट कि अभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी एंड देन आई जस्ट गो होम एंड या दैट्स ऑल. तो उन्होंने वही किया. ही जस्ट केप्ट कलेक्टिंग द मैंगोज एंड ही वॉज लिटरली सीइंग अपने ऐसे हाथ के नीचे से कि वो जो पीछे काले काले हाथ थे, वो लिटरली मैंगोज उनके निकाल रहे थे बास्केट से. बट ही कुड नॉट डू नथिंग. ठीक है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा. वो धीरे धीरे मैंगोज डालते रहे अपनी बास्केट में. एंड देन धीरे धीरे ही गॉट वेरी लाइक ऐसे अनकॉन्शियस. वो उसी जैसे होता नहीं है कि तुम एक ही काम करते रहो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर तुम थोड़े से ऐसे अनकॉन्शियस हो जाते हो, लाइक तुम्हारी बॉडी खुद ही काम करने लग जाती है, लाइक वही एक्शन करते रहते हो तुम पूरे टाइम. तो वो भी ऐसे ही हो गए. प्लस वो लाइक ही डिडंट स्लीप वेल इतना रात को, तो वो ऐसे थोड़ा नींद में भी थे. एंड ही वाज जस्ट लाइक कलेक्टिंग दोज मैंगोज एंड वो वही कर रहे थे, वो बार बार वही कर रहे थे, वही करे जा रहे थे. एंड धीरे धीरे फिर सुबह हो गई. एंड जैसे उन्होंने देखा कि अरे थोड़ी रोशनी हो गई, उन्होंने पीछे मुड़ के फिर देखा, देयर वाज नो वन बट हिज बास्केट वाज एम्प्टी स्टिल. एंड फिर उसके बाद ना वो उठे और उनके पैर में, हाथ में इतना दर्द हो रहा था बेचारे, मेरे को इतना बुरा लगा सुन के. तो वो ऐसे बिल्कुल उठे, उनके पैर हाथ में दर्द हो रहा था. फिर वो पीछे मुड़ के अपनी बास्केट उठा के जा रहे थे. एंड उसके बाद सामने से कुछ लोग दिखे उन्हें कि वो जा रहे हैं. तो उन लोगों ने आके पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो इनके घर से हो ना, मतलब जानते ही थे सब लोग मेरी परनानी के घर वालों को. तो ही जस्ट फेल डाउन ऐसे नीचे, वो गिर गए, वहीं पे गिर गए और वो बेहोश हो गए बिल्कुल. तो फिर वो लोग डर गए. उन्होंने जल्दी से उठाया, उनको वापस घर पे ले गए. एंड देन उनको होश आया. एंड भाई फॉर्चुनेटली नथिंग हैपेंड टू हिम, फॉर्चुनेटली, सीरियसली, टच वुड. तो फिर उन्होंने घर वालों को ये सब बातें बताई. एंड उनको बहुत डांट पड़ी कि तुमको मना किया था जाने के लिए, ये वो वगैरह. ओह माय गॉड, आई डोंट नो कि मैं ऐसी सिचुएशंस में तो कैसे रिएक्ट करती. मैं तो, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं भाई, ये सब सुनते ही ठंडे हो जाते हैं. तो मैं, अगर कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस हो जाए मुझे ऐसा, मैं तो ख़त्म ही मान लो मुझे. ठीक है, माई स्किन लुक्स सो ग्लोई बट इट्स नॉट ग्लो, इट्स लिटरली स्वेट. ठीक है, बाय द वे दीज वर द 4 स्टोरीज दैट माई मॉम टोल्ड मी. एंड वो मुझे और भी सुनाने वाली थी बट मुझे टाइम नहीं मिला. फिर मैंने कहा कि चलो बाद में, इतनी सारी मैं फिट भी नहीं कर पाऊँगी ना एक वीडियो में. तो या दीज वर द 4 स्टोरीज. एंड आई वुड रियली वांट टू नो कि तुम लोग अगर ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते तो तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तुम लोग क्या सोल्यूशन निकालते. एंड या basically this was it for the video and I really hope you enjoyed it and I hope मैंने compensate कर दिया होगा इतने दिन गायब रहने का सारा. तो yeah, I'll see you in the next video. Let me know if you want a part 2 of it, क्योंकि मेरी मम्मी पे बहुत सारी stories I don't know, तो वो मुझे और भी सुनाएंगी and then I'll narrate it to you. And by the way, these are not like fake stories, okay? So don't go and comment के oh my god see कितना fake है. If you think it's fake, just click off the video and get lost. We don't want your negative energies on my comments. Thank you.
Okay, that's all for the video. I'll see you in the next one. Bye bye.